स्वर्गीय श्रीमती गुलाब देवी एवं पिता के.एम. अग्रवाल का आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैंने अपने व्यवसाय में 49 वर्ष पूरे किए और मैं सदा उनका आभारी रहूँगा। बस जीवन की सफलता का श्रेय के लिए मैं उनका सदैव ऋणी रहूँगा। बस।
request Harjinder Singh ji to come on the dais. I request Shri Sanjay. I request Shri H.J. Agarwal sahab to escort Justice P.S. Gupta sahab to the dais. Formally mark the beginning of this function by illuminating the lamp. What is that? टेक इसको साइड से करिए इनको चैनल बोलता हूँ। शत शत नमन करे तुम तो वेद्यादाई जय मां सरस्वती शारदे शत शत नमन करे तुम तो वेद्यादाई दीनों के दुख हरो मां दीनों के दुख हरो मां जगत कल्याण दो जय मां सरस्वती शारदे शत शत नमन करे तुम तो वेद्यादाई जय मां सरस्वती शारदे शत शत I now request Shri Ajay Agarwal, eldest son-in-law of H.J. Agarwal sahab, to garland our chief guest and former Prime Minister of India, Honorable Shri Vishwanath Pratap Singh ji. Vishwanath Pratap Singh ji, former Prime Minister of India, and although he needs no introduction, he is an introduction in himself, but still as a matter of formal gesture,
I request Shri Manish Mehrotra, who is also the President, Computer Dealers Association, Allahabad, to introduce Honorable Shri Vishwanath Pratap Singh Ji to the gathering. राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, श्री एच.जी. अग्रवाल और हमारे सभी उपस्थित मेहमानों, राजा साहब के बारे में कुछ भी कहना वैसा ही है जैसे सूर्यदेव के सामने दिए की रोशनी, पर फिर भी कुछ चंद लाइनें उनके बारे में कहने की इजाजत चाहूंगा। राजा साहब का जन्म 25 जून 1931 को हुआ था। राजा साहब की प्राथमिकी इलाहाबाद में ही हुई, उसके बाद पुणे राजा साहब चले गए और वहां से बीएससी और एलएलडी की अपनी पढ़ाई पूरी करी। 25 जून के ही दिन उनका विवाह 1956 में हुआ। 1969 में पहली बार एमएलए का इलेक्शन आप लड़े और जीते। 1971 में एमपी का इलेक्शन लड़े। इंदिरा जी के समय में फर्स्ट डिप्टी कॉमर्स मिनिस्टर आप रहे। उत्तर प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर सन 82-83 में राजा साहब रहे। फाइनेंस मिनिस्टर 1984 में राजा साहब थे। 1986 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजा साहब और 89 में प्राइम मिनिस्टर हमारे राजा साहब हुए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका वेलकम और धन्यवाद। डॉक्टर B.N. अस्थाना टू द गैदरिंग। परम पूज्य आचार्य B.N. अस्थाना साहब के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आपकी बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे गुरु आपके शिष्य और हम सब आपके शिष्य। आपने वाणिज्य विभाग की सेवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दीर्घकाल तक की। तत्पश्चात आप कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में वहाँ अपनी सेवाएं देते रहे और आज भी जब भी वाणिज्य एवं प्रबंध शिक्षा क्षेत्र को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, हमें गुरु का आशीर्वाद मिलता है। And then completed his college education and CA in West Bengal. Started practice of CA in the year 1961. He is doing social work since 1970 and learned Vipassana meditation in the year 1980. Teaching Vipassana since 1996 after retiring from practice. Now totally involved in Vipassana and social work such as running of schools and hostels, etc. Thank you. Accountant to introduce Mr. Justice S.N. Agarwal ji to the gathering. Was in law practice in Allahabad for a long time of 30 years. After that, he was elevated to the judgeship in 1992 and sitting judge in Allahabad. Mostly he was presiding various tax benches and he has given several landmark decisions which must be known to all of you. He is now retired in 2003 and at present he is an acting member of Kaveri Tribunal. Thank you. Thank you, Agarwal sir. I now take this opportunity to introduce Justice P.S. Gupta ji. Justice P.S. Gupta ji was hired in 1992 and is now a trustee in the Hanumat Niketan. श्री जोगिंदर सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री हरजिंदर सिंह हमारे बीच में हैं। श्री जोगिंदर सिंह जी के बारे में कुछ कहना तो फिर से वही होगा, इलाहाबाद में सूरज के सामने दिए की रोशनी। श्री हरजिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है। I take this opportunity to introduce not the dignitaries but the relevance of the dignitaries on the dais. This is the felicitation function for entry into the 50th golden year of active practice of Shri H.G. Agarwal Sahab. We have with us Honorable Shri Vishwanath Pratap Singh Ji, former Prime Minister of India,
a close associate and no less than a family member of Shri H.G. Agarwal, who is the chief guest. We welcome him. This evening is related to mark the beginning of the 50th year of the become a professional and attain certain heights. We have Justice S.N. Agarwal Sahab and Mr. Justice P.S. Gupta Sahab, who are close friends and associates of H.G. Agarwal Sahab. And most important of all, no profession can survive without who is representing the clientele of Shri H.G. Agarwal Sahab. Shri Harjinder Singh is also the owner of this prestigious hotel. I request Professor B.N. Asthana to say a few words. समारोह के अध्यक्ष, जिनको फेलिसिटेट करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, श्री हरगोविंद अग्रवाल, माननीय भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर गुप्ता, माननीय न्यायमूर्ति श्री S.N. अग्रवाल, श्री डोडी तथा श्री हरजिंदर सिंह तथा इस कक्ष में उपस्थित इलाहाबाद नगर के विद्वज्जन, देवियों और सदन, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज अपने एक भूतपूर्व विद्यार्थी के अपने व्यवसाय में 50वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर मुझको 2 शब्द उनके विषय में कहने का अवसर मिला है। श्रीमान हरगोविंद अग्रवाल जब मेरे कक्षा में बैठते थे तब की मुझे स्पष्ट याद है, वो एक केवल अनुशासित विद्यार्थी ही नहीं थे। उसके बाद जब श्री हरगोविंद ने नाम मात्र की थी, श्री हरगोविंद जी ने तथा उनके अन्य साथियों ने मुझसे ये अपेक्षा की कि मैं उन विद्यार्थियों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करता रहूं और उनके पाठ्यक्रम में एक बहुत पुरानी सिविल लाइन्स में रहता था, जाया करता था, वहां विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ सहायता करने के लिए उनके पठन पाठन में। उसके बाद जब हरगोविंद ने वास्तव में प्रोफेशन में प्रवेश किया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ये जान के कि उनकी ख्याति बहुत जल्दी फैल गई और संभवतः अब आपको ज्ञात हो कि वो भारत ही में नहीं बल्कि काठमांडू भी जाते रहते हैं वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में सहायता करने के लिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री हरगोविंद ने जो सफलता प्राप्त की है उसका मैं बहुत बड़ा श्रेय उनकी पत्नी श्रीमती हरगोविंद को देता हूं कि बहुधा मेरे निवास स्थान पर पधारते हैं और कारण बतलाते हैं कि मेरा आशीर्वाद वर्तित हो जाए। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आपको सफलता की नए नए कीर्तिमान देखने को मिले। आदरणीय जस्टिस P.S. गुप्ता साहब, टोडी साहब, भाइयों बहनों, मैं तो सिर्फ बधाई देने के लिए अग्रवाल साहब से हमारे आज 35 साल से संबंध थे और इतने मधुर संबंध थे
मैंने सोचा कि उनको एक हृदय से बधाई दूंगा, लेकिन मुझको डायस पर बैठाएंगे और बोलेंगे ये नहीं मालूम था। वो एज अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रसिद्ध थे, बड़ा नाम था। इनकी एक गाड़ी थी, एम्बेसडर गाड़ी, 1977 में। ये बेचना चाहते थे तो हमने कहा हम ले लेंगे, और आदमी बेच देता है, वो बात खत्म हो जाती। फिर हुआ उल्टा। आपको मैं एक आर्ट स्कूल हमारे सिंघल साहब का था, मेरी उम्र 6 साल की थी और राजा साहब करीब 20 साल की उम्र के रहे होंगे। मैं देखने गया, हमने देखा कि वो बहुत सुंदर थे, खूबसूरत, बड़े बड़े बाल थे, तो बाल छोटे हो गए। हमने कही क्या हुआ साहब, उनके बाल छोटे हो गए? तो बहुत ही खूबसूरत थे और बड़े बड़े बाल थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनके बाल छोटे हो गए। खैर बहुत खुशी रही। कहते हैं कि सिंधु में 2 लकड़ी के ढेले आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद फिर न जाने कहां समुद्र की धारा में किधर चले जाएं। लेकिन समय की बात है कि आज हम बहुत खुश हैं, हम दोनों आज साथ में तरक्की करें। वो सन 77 की गाड़ी आज भी मेरे पास से बेची नहीं है। इनका स्वभाव जो भी मिला हो, इतने हृदय में, वो एक खुद के इंस्टीट्यूशन है, न जाने कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके अंदर में हुए। उनसे न तो केवल शिक्षा ही मिली होगी, उनके जो मनोभाव है, उनके चरित्र है, वो भी उनसे। मैं उनकी आशा करता हूं कि दिनों दिन पूरे 100 साल जिंदा रहे। आगे आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं उनको वो मार्गदर्शन देंगे। गृह नगर में पुनरागमन करते हुए बसंत की भांति प्रफुल्लित आज के इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, भाई डॉक्टर अस्थाना, आदरणीय टोडी जी, माननीय हरजिंदर सिंह जी, उपस्थित इलाहाबाद और बाहर से पधारे हुए देवियों और सज्जन, मैं तो आज पहली बार किसी व्यावसायिक गौरवमय सफलता अर्जित किए हुए व्यक्ति का 5 दशक स्पर्श करने पर अभिनंदन देखा। मैंने प्रयाग में भी नहीं देखा और अन्यत्र होता होगा, लेकिन यहां मैंने नहीं देखा। और कोई ये है और व्यापारिक नहीं। भोग युग में आज श्री अग्रवाल ने जिस तरह से व्यवसाय को गौरवमय किया, तो हम सभी के लिए प्रेरणा की बात है। हमारे इनके जो कनिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं, वे इनसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे और हम सभी लोग इनके लिए और व्यवसाय के लिए प्रार्थना करेंगे कि व्यवसायों को व्यापार से विश्वनाथ प्रसाद जी, जस्टिस गुप्ता जी, जस्टिस अग्रवाल जी, प्रोफेसर डॉक्टर अस्थाना जी और हरजिंदर सिंह जी, हमारे बैठे हुए इलाहाबाद और बाहर के अतिथि, मैं मेरे बोलने की मैं जनता में बोलने की आदत, हम लोग का इंटरटेन भी करते थे और समय समय वजह से नाश्ते का समय हुआ या कुछ हुआ तो
तैयार करना बनाता डालना और बहुत सी काम की चीज़ें बताना कि किस तरह क्या ऑडिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मुझे बातें याद आती है तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है। तो उस जमाने की मुझे याद करके लगते हैं कि वो जमाना फिर कब आएगा। तो करीब 1957-58 में वो आवाज ये कलकत्ते से पढ़ाई अपनी खत्म करके चले आए थे इलाहाबाद, और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी व्यवसाय आरंभ किया। फिर भी हम लोग आपस में बहुत मिलते जुलते रहते थे। वो हमसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, किस तरह से क्लाइंट से डील करना और कैसे प्रैक्टिस में काम करना चाहिए। और प्रार्थना करता हूँ कि वे इसी तरह। I now request Shri Harjinder Singh Ji to say a few words. Singh Ji, former Prime Minister of India, respected Shri H.G. Agarwal Ji, dignitaries on the dais and off the dais. I'm apprehensive about saying anything about such a person like Shri H.G. Agarwal among this August gathering. I have been here because my father, Shri Joginder Singh, I had to leave Allahabad due to Samaj and work. All I can say about him is that his experience is twice my age. Thank you. Harjinder Singh. I request Dr. Arun Kumar, Professor, University of Allahabad, and international trainer, Franklin Covey South Asia, to say a few words. Thank you, Shashwat. I honor the words. I'm not professor, but I honor your spirit. Thank you very much. मुख्य अतिथि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, आपके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों को हम विद्यार्थी के रूप में पढ़ा करते थे और परीक्षा की तैयारी करते थे। आचार्य प्रोफेसर बी एन अस्थाना साहब, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री प्रेम शंकर गुप्ता जी, न्यायमूर्ति श्री एस एन अग्रवाल साहब, श्री एल एन टोनी, श्री हरजिंदर सिंह जी, देवियों और सज्जनों एवं संत श्री एच जी अग्रवाल साहब। ये संत शब्द मैं अपने से नहीं कह रहा। आज से करीब 15 वर्ष पहले इनका यह परिचय मुझे मेरे गुरु ने कराया और इसका दृष्टांत भी दिया था, और जो आज स्वयं साबित भी हो गया। जिस तरह से न्यायमूर्ति माननीय एस एन अग्रवाल साहब ने आपके बारे में बताया, जिस तरह से अन्य वक्ताओं ने आपके बारे में बताया, उससे पता लगा कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य शिव प्रताप सिंह जी किस भावना से आपको संत की उपाधि दे गए। उन्होंने बताया था कि एक जमाने में हमारे विश्वविद्यालय के किसी आचार्य का मकान बन रहा था और उसमें चौखट, दरवाजे, दीवारें बन चुकी थी। उसी दिन शाम को श्री अग्रवाल 4000 रुपए लेके उनके दरवाजे पहुंचे। ये ऐसे संत स्वभाव वाले श्री हरगोविंद अग्रवाल जी के सम्मान में जो मुझे कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। आप जितने मृदु नम्र दिखते हैं, मैंने आपको शिला की भांति अटल अचल अंतर्मन से पाया है। पिछले लगभग और स्वयं की विपत्ति में कैसे हिमाचल की भांति अडिग खड़े रहते हैं, सबको साहस देते हैं। अपने प्रोफेशन के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति श्री अग्रवाल निरंतर हम सबको प्रेरणा देते हैं। और जो माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर गुप्ता जी ने कहा
कि व्यवसाय और व्यापार के अंतर इन्होंने स्पष्ट परिभाषित कर दिया। इतनी स्पष्ट परिभाषा तो मैं इससे पहले जान ही नहीं पाया था जितना आज जान पाया कि व्यवसाय और व्यापार में क्या अंतर है। श्री अग्रवाल उसके कुछ दें न दें सुगंध देंगे और मदद तो कर ही देंगे। आपकी दूरदृष्टि व्यापार से अलग रखते हुए हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। ईश्वर से मेरी यही करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद। मुख्य अतिथि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, आज इस गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर ठाना जी, हम लोग के अग्रज मार्गदर्शक और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री प्रेमचंद्र गुप्ता जी, मेरे बंधुवर भाई सुजिंदर नारायण जी, और आज जिनको हम देख रहे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं वरन एडवोकेट्स के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है, जिनकी 50वें वर्ष में अपने व्यावसायिक जीवन में प्रवेश कर रहे हमारे आदरणीय श्री हरगोविंद अग्रवाल जी, आज एक सुखद अवसर है कि हम अपने इस प्रोफेशन के अपने जीवन में एक लेजेंड बने हुए व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। I can say that by felicitating C.H.G. Agarwal, every member of the profession, whether he belongs to advocates class or chartered accountant, feels proud of it. I remember those days when my elder brother Shri Rajaram Ji Agarwal was practicing in the High Court at Allahabad, and sometimes C.H.G. Agarwal used to come to brief him in some of the income tax matters. I was a raw junior at that time, in 60s and 70s. But the way of working of Shri Agarwal has been a source of inspiration for every member of the profession. Quite a good number of his juniors are present here in this August gathering, and I was talking to a few of them. They were saying that whatever they are today, it is because of the guidance given by C.H.G. Agarwal. I only pray to the God that He should give the sufficient strength to C.H.G. Agarwal to give the guidance for the coming years, when according to one of the esteemed speakers, Justice Premchandra Gupta, the profession is taking the shape of a commercialized. It all depends upon the individual, how he treats it and how he behaves with the profession. But I can only say that still the days are not far off when some of his juniors will also attain the same height which he has attained today. With these words, I only offer my best wishes for a long, happy and prosperous professional life to C.H.G. Agarwal. Thank you very much. और भारतीय राजनीति में आदर्श परंपराओं के प्रतीक माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, परम आदरणीय डॉक्टर ठाना साहब, आदरणीय न्यायमूर्ति गुप्ता जी, आदरणीय न्यायमूर्ति अग्रवाल साहब, रोडी साहब, जितेंद्र सिंह जी, और बहुत ही आदर, प्रेम, सौहार्द के प्रति आज के समारोह के केंद्र बिंदु C.H.G. अग्रवाल साहब, मैं तो बहुत चक्का रह गया जब मेरा नाम बोलने के लिए कह दिया गया। मैं समझ नहीं पाया कि मैं इनके किन गुणों की बखान यहाँ पर संक्षेप में करूं। मैंने तो उन्हें सामाजिक सेवा और राजनीति में पुल की तरह पाया।
राजनीति और समाज सेवा दोनों के पर्याय और उसका मिश्रित रूप देखा जाए, केमिस्ट्री में उसको बना के देखा जाए तो उसकी मूर्त रूप अग्रवाल साहब है। अग्रवाल साहब के परिवार से, आदरणीय भाभी जी से प्रार्थना करता हूं कि व्यवसाय की भी प्लेटिनम जुबली बनाने में आप लोग उनका सहयोग करें और भगवान उनको सतत समर्थवान बना रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं एक बार पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जी अग्रवाल को व्यवसाय में कीर्ति स्तंभ की तरह अपना आशीर्वाद दें ताकि आने वाले समय में उनका मार्गदर्शन व्यवसाय में और लोगों को मिले और समाज सेवा में वो संत की भूमिका निभा सके। एक बार पुनः शुभकामना। पूजनीय पिताजी, इस सुनहरी वर्षगांठ के अवसर पर जगाया 50 वर्षों ने यादों का वो सिलसिला। बचपन था जब गुजरा फूलों की छांव में, हर राह पर आपका साथ था हमें मिला। जिंदगी की ऊंचाइयों को कुछ ऐसे आपने छुआ, चढ़ते गए शिखर त शिखर मानो जैसे हो कोई धुआं। परिश्रम मेहनत आपका मूलधन हमेशा, इसलिए नहीं पाई किसी ने आपसे कोई निराशा। दुख सुख में साथ दिया, संभाल दिया आपने सभी को, फिर कैसे भुलाया आंगन की इस कली को। आपके आदर्शों पर ही बिताया है हमने ये जीवन, याद करके बचपन को कभी चुपके से रोया भी है मेरा मन। ये दिन बड़ा है खुश नसीब है ताज, कभी न मिले दुआ करती हूँ आपको किसी से मां। इस सुनहरी वर्षगांठ पर प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर, आप सदा यूं ही सफल होते रहें जीवन के हर मोड़ पर। I would now request our chief guest, Honorable Shri Vishwanath Pratap Singh Ji, Prime Minister of India, to say a few words. थाना जी, जस्टिस एस.एन. अग्रवाल जी, टोनी जी, राजेंद्र सिंह जी, देवी और सज्जन, जब मंच पे बैठे लोगों का संबंध बताया जा रहा था अग्रवाल साहब से, तो किसी को गुरु रूप में, किसी को साथी के रूप में, किसी को क्लाइंट के रूप में बताया गया। मैं सोचा कि मैं भी किसी कैटेगरी में आऊंगा। हम कहे कुछ नहीं तो क्लाइंट के कैटेगरी में तो आऊंगा ही। वैसे सारे रिटर्न फाइल हमारे करते हैं, हमारे भी पूरे परिवार में, तो उसमें भी नहीं आया। तो मैंने सोचा मेरा क्लाइंट की कैटेगरी में क्यों नहीं आया। फिर सोचते सोचते समझ में आया कि आज तक हमने इनको फीस नहीं दी। और इन्होंने न ली और न हमने दी। हाँ तो ठीक है ना। तो ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री हो गए या मुख्यमंत्री उसके बाद इन्होंने फीस बंद कर दी। हम कुछ नहीं थे, मिले भी नहीं थे, तब से नहीं लेते। हाँ तो लेकिन ये नहीं कि उन्होंने फीस नहीं ली तो बेकार का काम करते रहे। एक बार सरकार ने मेरे रिटर्न 40 साल के मंगाए दिल्ली, 6 अफसरों को बैठाया, 3 महीना बैठाया कि इसमें कोई त्रुटि निकाल दो। और 3 महीने के बाद जब अफसरों ने कहा कि इसमें हमको कोई त्रुटि नहीं मिल रही है, अब सोचिए हम कितने ऋणी हैं।
असल में ये सफलता तो बहुतों को मिलती है, लेकिन बहुत सफल लोगों को बड़ा दुखी भी देते हैं। जरूरी नहीं कि सफलता के साथ सुख। बहुत सफल लोगों को भी देखा, लेकिन वो अवांछित भी रहे, लेकिन सफल हैं। उसके बाद और इसी से जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं और वो इसी सूत्र से बने। एक और अच्छी बात कि इन्होंने 50 साल के अपने जो कर्मठ जीवन के शुरुआत का सब लोग ने सोच करके ये रखा है। लोग बर्थडे 50 साल में मनाते हैं, हमारे उसमें क्या करो आपको, हमारा बर्थडे है, हमारा बर्थडे है। लेकिन इन्होंने अपने कार्य के, अपनी सेवाओं, आज ये मनाया जा रहा है। और ये उदाहरण कम से कम राजनीतिक लोगों को जरूर लेना चाहिए। उन्होंने क्या काम किया, उस काम की तिथि से 50 साल जोड़े, चाहे एक ही काम किया हो, कोई बात नहीं, 50 साल ना भी काम किया तो हम समझते हैं कि कुछ काम का जो है वो सम्मान होगा। आपके 50 साल के सक्रिय काम शुरुआत हो रहा है, 49 साल हो गया। तो एक ये दृष्टिकोण, वो जो कर्मठ व्यक्ति है वही और हमारे ये मापदंड करना चाहिए। और जो बर्थडे मनाते हैं उसे कहते हैं कि आप अपना कोई कार्य डे मनाइए तो हम लोग उसको मनाएं। और यही नहीं, ये तो परिवार से कई तरह, राजनीति में कभी नहीं रहे, लेकिन राजनीति में कभी हमको राजनीति से शरण लेनी पड़ी तो इनके घर पहुंचा। हमारे लिए खिला रहा था, सबसे बच जाते थे। चुनाव में भी रात बिरात हो तो कहते खाना खाएंगे, दोपहर हो तो खाना खाएंगे, जब भी हो या आज यही रहेंगे। और श्रीमती एच.जी. अग्रवाल हमारे घर के मांडा की, भारत के बगल में। तो बस ये और इनका परिवार अपने हाथ से खाना बना करके, चाहे तबीयत ठीक हो चाहे ना हो, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ दिन पहले गए थे तो लग गए ये भी बनाने चुनाने में। तो हर तरह से हम रेडी हैं। और कुछ बातें तो हमारे परिवार की में इस तरह शरीक रहे हमको मदद करने में कि शायद परिवार के और मुख्तेरे नहीं जानते हैं और उन्होंने हमारी मदद की। तो आपका अगर जब बैलेंस शीट बने तो हमारे बैलेंस शीट में, एक बैलेंस शीट में ऋण के साइड में आपका नाम अग्रवाल रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा। हर तरह से ऋणी है, आपके प्रोफेशन से, आपके व्यवहार से, आपके परिवार से। और इस एक दिल की भावना लेकर के आपकी कामना करता हूँ। और ये जैसा कहा त्रिपाठी जी ने कि बस का सेक्रेटरी नहीं, आपके कार्य का सेक्रेटरी ने इस भावना को लेकर के। There might be many more people who would be wanting to say a few words or share their feelings, but time is short. So we have, from the side of all the family members, I have a request from Mrs. H.G. जोक कर दिया
अच्छा तो ठीक है, अग्रवाल जी की फरमाइश थी और रामलीला वालों ने सोचा लक्ष्मण जी को जो लगती है संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी की मूर्छा गई उनको फिर जागृत करने के लिए, तो ये ऐसा दिखाया जाए कि उड़ करके आ रहे पैदल नहीं, उड़ के आ रहे और रस्सी से हनुमान जी को लटकाए और उड़ के आएंगे उतार देंगे। और ये सब न्याय किया, रामलीला टेक्निकल कमेटी ने अप्रूव किया और सब ने माना कि वो बढ़िया। अच्छा तो वो फिर आया थी, हनुमान जी ऊपर से उतरे, अब तालियां पीटने लगी। ये तो किसी रामलीला में नहीं देखी, पता नहीं कहाँ वो रस्सी जो है गड़ारी में अटक गई। अब हनुमान जी उतरे तो जनता जो है मुझे तो ताली पीटते पीटते फिर कुछ कंसर्न हो गए कि वो क्या रहा, उनको परेशानी हुई, कुछ लोग हल्ला गुल्ला करने लगे। जनता से वो मीटिंग शुरू हो गई, तो एक कोई था रामलीला में पर्दे के पीछे, उसको और नहीं सूझा, कुल्हाड़ी लाया, रस्सी को काटा और हनुमान जी सीधे आ जाए पड़े। कुछ देर तक तो हनुमान जी मूर्छित रहे। उसके बाद हनुमान जी की मूर्छा जब दूर हुई तो बैठे, तो कोई कह रहा था, किसी ने शुरू किया वो वहां से श्लोक, अरे वो क्या कहते दोहा बोलते हैं, अरे छोड़ा बतावा रसरिया के काटे। अब गदा लेके अंदर घुसे और जिसको बताया वो गदा लेकर के हनुमान जी खेलना शुरू किया, वो आगे आगे भाग रहा, सब फिर हनुमान जी को रोक। ऐसा बहुत कुछ और जीवन में भी हो जाता है। We have a manpatra which I will request Honorable Shri Vishwanath Pratap Singh Ji to give to H.G. Agarwal Sahab. And before that, I will read out the manpatra for the gathering. सम्मान पत्र। कर्मनिष्ठ, परम परिश्रमी, यशस्वी, स्नेही श्री हरगोविंद अग्रवाल जी के सम्मान में सादर समर्पित। मान्यवर, व्यवसाय के 50वें वर्ष में पदार्पण आपकी कर्मनिष्ठा, परिश्रम तथा एकाग्रता को परिलक्षित कर रहा है। 1955 से सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने से आज तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कुशलतापूर्वक कर्मयोगी की भांति पूर्ण निष्ठा से सेवारत हैं। आज इस अवसर पर हम आपका अभिनंदन करते हैं। सन 1955 से आज तक न केवल इस पेशे के द्वारा ही बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी समाज को नई दिशा तथा गतिविधियां आपने प्रदान की हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में केंद्रीय परिषद के भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य रहे हैं। आप यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल में रहकर आपने उसका सफल संचालन किया है। इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव के रूप में आपका कार्य सराहनीय रहा है।
इस दौरान आप रोटरी क्लब के अध्यक्ष भी रहे। आपने 16 खंडों वाले सुप्रीम कोर्ट कैश जजमेंट नामक पुस्तक का सह संपादन भी किया। इस प्रकार न केवल व्यवसाय के क्षेत्र में अपितु जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आपका विशेष आदर सम्मान रहा है। इस विशिष्ट अवसर पर हमारा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। हम सब कामना करते हैं कि आप सपरिवार सदा सर्वदा सुखी, स्वस्थ तथा दीर्घायु हों। समस्त परिवार मित्रगण शुभचिंतकों की ओर से माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा प्रदत्त। लैपटॉप पीछे से आप लोग The life span of Sri H.G. Agrawal has been very illustrious. I have tried to make स्पीकर ठीक है, रहना दो नीचे नीचे सर बहुत लीटर से
Sir has not only an illustrious career, but he has given full time to social, religious activities as well as to his family. This is a rare achievement to have such a balanced life in all fields. I would now request Ashutosh Mukherjee and party to give a presentation on some Geet and Bhajan. Thank you, Ashutosh Mukherjee ji. Honorable respected Adani Teaching Thap, former Prime Minister of India, respected Honorable H.C. Agarwal ji, and all distinguished VIP persons, please welcome. आज जैसा कि आपको मालूम है, गोल्डन ईयर सेलिब्रेशन 50 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग. आदरणीय रिस्पेक्टेड H.C. अग्रवाल साहब का ये सेलिब्रेशन भजन से शुभारंभ करते हैं. आज की साथ में जानतो भटनागर टोनी परिवार का दिन है. किसी जमाने में किसी ने क्या आपको कहा था, ईश्वर के लिए उस इंसान की जिंदगी में कभी ना आएगा उनका नाम जो 24 घंटे में एक बार ले भगवान का नाम. बजरंगबली आदरणीय एक्सपेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि बजरंगबली की वो घटना. तो आज दिन बहुत अच्छा है, शनिवार का दिन है. तो सबसे पहले हम लोग भजन गा रहे हैं. ईश्वर रिस्पेक्टेड हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इनको अवार्ड दिया. मैं चाहूँगा एक तालियां अगर आप बजा दें, छोटी सी तालियां, बिल्कुल छोटी सी तालियां. और बहुत ज्यादा थैंक यू आपको. तो आइए आगाज करते हैं आज ये सुंदर कार्यक्रम. श्री मनोज गुप्ता जी प्लीज. जो भी
आज के डायरी में मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना होगा, क्योंकि मैंने एक चीज से इच्छा लिया। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि जन्मदिन मनाने से क्या फायदा, कोई तरक्की हो लाइफ का, इतना बड़ा बिग चेंज हो, उसमें सेलिब्रेट किया जाए। मैं चाहूंगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी के लिए तालियां जरूर बजाएं। ये मेरे डायरी में सबसे इम्पोर्टेंट आज का दिन रहेगा। अंकल इतनी बड़ी बात मेरे दिल में छा गई। जब आने वालों के लिए क्या संदेश है, हमारे आशुतोष जी ने कहा कि आप मुझे वचन पेश करें, ऐसी बात कोशिश कर रहा हूँ। Honorable Chief Guest. Honored guests on the dais and off the dais. I am overwhelmed at the love and affection shown by everybody present here.
I thank all of you for sparing your valuable time to come to this function, especially to respectable Raja Sahab, because of his illness, and he toured thrice in this fortnight. But for me, he never objected and he came. It has been a pleasure for me all these 49 years to serve the profession, and my work has always been a source of constant joy for me. Looking back at the 49 years of my profession career, there have many ups and downs, but one message that I would like to convey to the younger generation is that even in adverse circumstances, one should continue to remain cheerful and face the situation boldly, honestly, and sincerely, and should have always faith in God. I thank you all once again for coming this function. Thank you, sir. Yes, sir. Honorable judges, we have to present to all ladies and gentlemen. आपके बीच यूपी के वन ऑफ द बेस्ट रेडियो आर्टिस्ट भजन गायिका एक खूबसूरत सा भजन रखें, उनके बाद भजन रखें। संगत करेंगे जो अरुण शंकर भटनागर, टोनी जी और मनोज गुप्ता जी। आपको जो आप सांसद चंद्र जी आपकी फरमाइश है एक गजल आप सुनना चाहते हैं।
वाजपेयी जी यहाँ पर पहले ही कोरोना भरने का नाम हमारे जी के आदेश के अनुसार वाजपेयी जी की पसंद है हम लोग सुना रहे हैं और उसके बाद अरे लिए
सिंह एवं मिस्टर जस्टिस प्रेम शंकर गुप्त और श्री SN अग्रवाल को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आकर के अपना अमूल्य समय